So hello and welcome everyone, this is Abhi Hashmi. So we will proceed our lecture number 4. Double displacement reaction, those kind of reactions in which the interchange of ions takes place between the two compounds, then those kind of reactions are called double displacement reactions. For example, सोडियम था अपने सल्फेट में, बेरियम था अपने क्लोराइड में, रिएक्ट करे तो सोडियम बना लेगा क्लोराइड के साथ कंपाउंड, बेरियम बना लेगा सल्फेट के साथ कंपाउंड और वाइट कलर में नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा. अच्छा, व्हाट द हेल इज दिस प्रेसिपिटेट? सपोज आपने एक ग्लास वाटर में सैंड को डिसॉल्व किया, कुछ टाइम बाद वो सैंड वाटर में नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगी एंड दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस इन विच द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. So for better understanding of these reactions, let's see one animation. We'll require sodium sulfate, barium chloride, dilute HCl, a beaker, conical flask and test tubes. Take a small quantity of barium chloride in a test tube and transfer it into a conical flask. In another test tube, take a small quantity of sodium sulfate and transfer it into the conical flask containing barium chloride solution. A white precipitate of barium sulfate is formed immediately. This confirms the presence of sulfate SO4 2- ions. Stir the contents of the conical flask and keep it undisturbed for some time. The precipitate of barium sulfate settles down. Decant the upper solution from the conical flask into a beaker. Then add a small quantity of dilute HCl into the conical flask containing the precipitate. Swirl the flask well. The white precipitate is insoluble in dilute HCl. In this chemical reaction, sulfate ions are displaced by chloride ions and chloride ions are displaced by sulfate ions. So the reaction is a double displacement reaction. So next is oxidation and reduction. तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन होने वाली है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की. बाकी अगर आप फर्दर जे नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो इसको तो आप ढंग से एब्जॉर्ब कर ही लो. क्या सपोज हम अगर ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मानते हैं, सो इफ़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस देन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड इफ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस देन रिडक्शन टेक्स प्लेस. Understand, we will see it through an example. Suppose if copper reacts with oxygen, then it will convert it into a copper oxide. तो यहाँ पे copper का oxidation हुआ है because the addition of oxygen will takes place and the copper oxide is a black color layer. ओके, तो अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करा दिया जाए, so again the copper oxide which will form will be converted into copper metal. So the reduction of copper oxide will takes place because the removal of oxygen will takes place. अगर हम नेक्स्ट प्रेफरेंस, अच्छा, ड्यूरिंग ऊपर जो रिएक्शन हुई थी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की, उसमें हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, वहीं कॉपर ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रहा है. तो दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस. Some more example is zinc oxide when reacts with carbon, तो it will be reduced to zinc and copper oxide. कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है. MnO2 + 4HCl will gives us MnCl2 + 2H2O + क्लोरीन. तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का यहाँ पे MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है. HCl का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है बिकॉज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस. तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि सपोज हाइड्रोजन को प्रेफरेंस लें तो वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन का ही वाइस वर्सा है. तो इफ़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस देन दोज टाइप्स ऑफ देन द ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस एंड if the removal of oxygen and the addition of hydrogen takes place, then reduction takes place. तो इसको ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना.
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कोई डे टू डे लाइफ में रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज़ कोरोजन। सपोज़ हम कोई आयरन की नई चीज़ बाय करते हैं तो वो काफ़ी शाइनी दिखती है, शाइनी और अट्रैक्टिव दिखती है, बट टाइम के साथ उसमें एक रेडिश ब्राउन पाउडर चिपक जाता है एंड विच इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, कुछ और मेटल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अगर वो एसिड या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएँ तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। सपोज़ अगर एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन। तो अगर सिल्वर की बात करें तो उस पर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। ये देख रहे हो आप, ये ज्वेलरी है जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई है। दूसरी हम बात करें कि जो कॉपर रहता है वो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये देख रहे हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके कलर में काफ़ी चेंज आया है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। तो पीछे जो नदी दिख रही है मतलब वो मॉइस्चर से रिएक्ट किया तो वो उसने अपना कलर चेंज कर दिया। तो ये काफ़ी इशू है क्योंकि कार बॉडीज़, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स इन सब में रस्टिंग हो जाती है। तो इट इज़ अ सीरियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंसर्न। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। खाने का अच्छा जो फैट्स एंड ऑयल्स रहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनके टेस्ट में और स्मेल में चेंज आ जाता है। इसलिए हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं जो खाने को जल्दी ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है हाउ द फूड बिकम स्टेल। तो यार लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।